خصوصی تقریبات کا اہتمام، ملک بھر میں ریلیوں کا انعقاد، شہداء کے ایصال ثواب کے لیے مساجد میں قرآن خوانی اور دعائیں۔ شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جی ایچ کیو راولپنڈی یوم تکریم شہداء کی مرکزی تقریب، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی۔ تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات کی شرکت، شہداء کے اہل خانہ بھی موجود۔ 9 مئی اور 10 مئی کے دوران جو دلخراش واقعات رونما ہوئے، اس نے پاکستان میں بسنے والے 23 کروڑ عوام کو شدید دلی صدمہ پہنچایا اور غم اور غصے کی ایک شدید لہر پورے پاکستان میں آنن فانن اس کی لہریں پھیل گئیں۔ جس سینٹر سے آزادی کی صدائیں 1947 میں بلند ہوئیں، اس کو جلا دینا، راکھ کا ڈھیر بنا دینا، کہاں کی حب الوطنی ہے؟ اور 10 مئی کے واقعات نے پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے دلوں کو شدید ٹھیس پہنچائی۔ ریڈیو سے ہی قیام پاکستان کا سب سے پہلے باضابطہ اعلان کیا گیا۔ تاریخی اہمیت کے حامل اس ادارے کے ساتھ ایسا سلوک ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ پوری قوم متحد ہے اور عہد کرتی ہے کہ ایسے شرپسند عناصر کو قانون کے اور آئین کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ اسلام آباد ایئر ہیڈ کوارٹر میں یادگار شہداء پر یوم تکریم شہداء پاکستان کی تقریب، سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر تقریب کے مہمان خصوصی۔ شہداء کے درجات کی بلندی اور ملکی ترقی اور استحکام کے لیے دعا۔ اسلام آباد نیول ہیڈ کوارٹر میں یادگار شہداء پر یوم تکریم شہداء پاکستان کی تقریب، شہداء پاکستان کو سلامی پیش کی گئی۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تقریب کے مہمان خصوصی، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات کی شرکت۔ تقریب میں شہداء کے اہل خانہ بھی موجود۔ قوم کو اپنے بہادر شہداء پر فخر ہے۔ ہمارے شہداء نے آزمائش کی ہر گھڑی میں جذبہ حب الوطنی اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ملکی سرحدوں کے دفاع کے علاوہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کی لعنت کو بھی کامیابی سے شکست دی۔ ملک کی سالمیت اور سلامتی ہمارے شہداء کی گراں قدر خدمات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا یوم تکریم شہداء کے موقع پر پیغام۔ آج یوم تکریم شہداء پاکستان پر شہداء، غازیوں، ان کے اہل خانہ، وطن کے محافظوں سے یکجہتی کا فقید المثال مظاہرہ کریں۔ یہ قوم کی اجتماعی سوچ کی تبدیلی کا دن ہے۔ تکریم شہداء کی روشنی سے 9 مئی کی سیاہی مٹا دیں۔ شہداء کے مزاروں، یادگاروں پر پھول اور اپنی محبتیں نچھاور کریں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا یوم تکریم شہداء پاکستان پر افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کے شہداء کو شاندار خراج تحسین۔ وردی کا رنگ کچھ بھی ہو، سمندر میں سفید، ہوا میں نیلا، بارڈر پر خاکی، پولیس سمیت تمام شہداء اور غازیوں کو آج ہمارا سلام ہے۔ پاکستان کے قیام، بقا اور سالمیت میں لاکھوں شہداء اور غازیوں کا قیمتی لہو شامل ہے۔ آئی جی پنجاب۔ یوم تکریم شہداء، میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر اور میجر شبیر شریف شہید کی قبروں پر ان کے ورثاء اور عوام کی حاضری۔ اس موقع پر پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔
پاک فضائیہ کا پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید کو یوم تکریم شہدائے پاکستان پر خراج عقیدت۔ پاکستان کے بہادر سپوت، اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر پانے والے کم سن ترین پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے دستاویزی فلم جاری کر دی۔ to peacekeeping missions in the continent. Along with this, Pakistan has also been strong supporter of African Union and has been cooperating with the African countries on several issues such as climate change, peacekeeping and poverty alleviation. Furthermore, Pakistan has been providing scholarships to African students to study in Pakistani universities, and many African students have been benefiting from this program. Defense cooperation between Pakistan and African nations is expanding, and the country has given assistance in developing skills of African forces in counter-terrorism and security-related fields. Pakistan offered scholarships, educational and capacity-building programs in various fields of the training and development of human resources to the African students. Furthermore, today it continues to work together to promote peace, prosperity and development in Africa. Although there is a vast potential for economic activity between Pakistan and African continent, unfortunately it has remained stagnant to at around $3 billion per year for the last few years, but has now crossed a mark of $4 billion and is $6 billion for 2021. The main reason for the low trade volume has been low level of engagement of Pakistan and Africa. Pakistan's Engage Africa policy is a testament to Pakistan's commitment to strengthening ties with African nations. This policy seeks to deepen our engagement with Africa in areas such as trade, investment and cultural exchange. It is an important step towards building a more prosperous and interconnected world. Through the Engage Africa policy, Pakistan is working to promote peace and stability in the region and to support African nations in their efforts to achieve their development goals. The launching of new missions in various regions of Africa is proof of that. The 5 recently established missions, which were mentioned by Mr. Suhail, demonstrates Pakistan's dedication and deepening the relations with Africa and stepping up its involvement with the continent. This can assist Pakistan in pursuing partnerships that will benefit both sides. Economically, the Engage Africa policy has encouraged trade and investment between Pakistan and African countries. It has created opportunities for Pakistani businessmen to explore untapped markets in Africa and establish mutually beneficial partnerships. Similarly, African countries have shown interest in benefiting from Pakistani experience in the sectors such as agriculture, textile, pharmaceutical and information technology. उस आगे बढ़ाने के लिए हमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, हमें पाकिस्तान में इंपोर्ट्स चाहिए, हमें पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी चाहिए। हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स में पाकिस्तान को लाना चाहते हैं। अपने ताल्लुकात इन तमाम ममालिक से जो ऑलरेडी पूरी दुनिया की वैल्यू चेन्स के अंदर मौजूद हैं, वो ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान को भी उसमें देखना चाहते हैं। दुनिया का जो नक्शा है तजारत का और दुनिया का जो नक्शा है इंडस्ट्रीज का, हम उसमें पाकिस्तान को भी देखना चाहते हैं। हमारी इसके अलावा कोई गर्ज नहीं। इसी वजह से हम कहते हैं कि हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है। आप जिस जाविये से चाहें देख लें, राहदारी के जाविये से देख लें कि पाकिस्तान गेटवे है, देख लीजिए। पाकिस्तान ग्रेट मार्केट है, देख लीजिए। पाकिस्तान एक इन्वेस्टमेंट साइट है, देख लीजिए।
اور پاکستان میں کیا کیا نہیں ہے بھائی، میں نے جتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں، پاکستان میں سب سے بڑا تو ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر ہمارا گلگت بلتستان کشمیر میں جو آڑو جو خوبانی پیدا ہوتی ہے وہ آدھی سے زائد تو شہر تک پہنچتے پہنچتے ضائع ہو جاتی ہے. اگر ہمارے پاس توانائی ہوگی وہاں پہ ہم پلپنگ کریں گے، پیکیجنگ کریں گے، ورلڈ سٹینڈرڈز کو میٹ کریں گے، ایکسپورٹ کریں گے تو ایک ریولوشن آ جائے گا نا. پاکستان کی تمام دہی آبادی میں ایک ریولوشن آ جائے گا. تو آپ ایکسپورٹ کے زاویے سے دیکھ لیں، ٹیکسٹائل کے زاویے سے دیکھ لیں، جو میرے خیال میں بہت بڑا ایک ہمارا گارمنٹ کی ایکسپورٹ روس میں ایک بہت بڑا ہمارا، میں بھی بات کر رہا تھا اپنے بھائی سے تو انہوں نے بتایا کہ ہماری سٹرس فروٹس جو ہیں، ہمارا مینگو ہے، یہ تمام چیزیں ہم ایکسپورٹ کریں گے. اب آپ ایکسپورٹ کے زاویے سے دیکھ لیجئے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تمام ایکسپورٹ جو نہیں ہو پا رہی، جو ضائع ہو جاتی ہے، درختوں پہ گل سڑ جاتی ہے، درختوں کے نیچے گر جاتی ہے، اگر ہمارے پاس تھوڑا سا انفراسٹرکچر ہو اور تھوڑی سی توانائی ہو تو یہ تمام ایکسپورٹ ہے. وہ آڑو جو آپ دیکھتے ہیں گلگت میں یا بلتستان میں کسی جگہ پہ زمین پہ گرا گلا سڑا، وہ آپ کی ایکسپورٹ ہے، وہ آپ کا ڈالر ہے جو وہیں پہ پڑھ کے آپ ڈالر کو کہہ رہے ہیں بھائی گل جائے سڑ جائے. تو ایسا نہیں ہوگا. یہ ہمارے وزیر اعظم کی ویژن نہیں ہے. پاکستان اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس راستے پہ چلے گا اور متانت کے ساتھ چلے گا اور استقامت کے ساتھ چلے گا اور ایک ہمبل طریقے سے صرف ہم اپنے بچوں کا مستقبل آگے بڑھائیں گے. اس میں نارتھ امریکہ بھی ہے، ساؤتھ امریکہ بھی ہے، سینٹرل ایشیا بھی ہے، رشیا بھی ہے، مشرق وسطیٰ بھی ہے، پیسیفک رم بھی ہے. یہ تمام ممالک ہیں. آپ کے ملک سے ہمیں بہت سیکھنا ہے. We need to learn a lot from the revolution in the Pacific Rim. We want to be the hub for investments. We want to be the hub for investments from all over. There are many countries that cannot afford or continue to afford to have certain kinds of industries because their factor input costs, their labor costs have exponentially increased. And we'd like to present Pakistan as a country that has that infrastructure, that has that labor force, that has that technology, and we'll share the technology. We'd like to import and we do like to do JVs with technology. ہمیں ایک کوریڈور بنانا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا. وہ ممالک جہاں پہ سائنس ہے، تحقیق ہے، ہم ان سے روابط اور رشتے بڑھانے چاہتے ہیں تاکہ ہماری ڈیفیوژن ہو انوویشن کی، ٹیکنالوجی کی، سائنس کی، تجارت کی. یہ ہے ہمارا ویژن اور بس یہ ہے سمپل پاکستان جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. تو میں نے پاکستان آپ کے سامنے رکھ دیا. پاکستان آپ کو جیو پالیٹکس کے حوالے سے رکھ دیا اور آپ کو بتایا کہ ہماری جیو پالیٹکس کیا ہے، ہماری جیو پولیٹیکل کنفیگریشن اس وقت کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ مگر رسپانسبل ریاست کے طور پہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. میں نے آپ کو پاکستان کو ایکسپورٹ کے زاویے سے بھی بتایا کہ ہمارا ویژن کیا ہے، کہ کیسے گاؤں گاؤں کریا کریا ہم انڈسٹریل فٹ پرنٹ بنائیں گے. جو چیز جہاں پیدا ہوتی ہے وہیں پہ اس میں ویلیو ایڈیشن کریں گے، نوکری فراہم کریں گے لوگوں کو، انرجی لے کر آئیں گے. انرجی کے ذریعے میں نے آپ کو امپورٹ کی طرف لے گیا، آپ کو بتایا کہاں کہاں سے لائیں گے، کیا کیا لے کر آئیں گے، گرین کیا ہوگا، براؤن کیا ہوگا. اب انشاءاللہ ہم نے ایک ریفائنری پالیسی اپروو کی ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے سامنے ہم $10 بلین یعنی 10,000 ملین ڈالر کی وزیر اعظم سے افتتاح کروائیں گے ایک انویسٹمنٹ کا. ابھی میں آپ کو اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتا، لیکن جیسے میں نے کہا تھا روس سے تیل آئے گا تو سب ہنستے تھے، اب نہیں ہنستے. بالکل ویسے ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ $10 بلین کی ریفائنری میں انویسٹمنٹ آئے گی. پلیز ہنسیے گا مت، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آ ہی جائے. تو یہ وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ولی کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دنیا میں پاکستان کو تجارت میں آگے دیکھنا چاہتے ہیں. منڈیوں تک آسان رسائی نہ ہونے کی وجہ سے نصف پھل ضائع ہو جاتا ہے. پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے بھی پوری کوشش کر رہے ہیں. دنیا میں پاکستان کو تجارت میں اگر آگے دیکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں مزید پالیسیز بنانا ہوں گی. وطن کے شہداء پہ ناز ہم کو، یہ ناز ہم کو سدا رہے گا. وطن کے شہداء پہ ناز ہم کو، یہ ناز ہم کو سدا رہے گا. یہ جان جاتی ہے چاہے جائے، وطن ہمارا بچا رہے گا.
ये कह के सीनों पे जख्म खाए, जरा भी इस पर ना आंच आए, लहू से सींचा है सारा गुलशन, ये सारा गुलशन खिला रहेगा। अजियतों को, मुसीबतों को गले लगाकर पयाम दे दो, ये राहे हक है, यहां पे हर सू वतन से अहदे वफा रहेगा। गिले मिटाकर, गले लगाकर, बुलंदियों पर कदम जमाकर, फलक के ऊपर हमारे परचम का चांद तारा सजा रहेगा। जो सर बकफ हैं वतन की खातिर, है जां हथेली पे जिनकी हाजिर। जो सर बकफ हैं वतन की खातिर, है जां हथेली पे जिनकी हाजिर। खुदा की रहमत का उनके सर पर हमेशा साया बना रहेगा। नाज़रीन, कौम के शहदा की बेलौस कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज यौम तकरीम शहदा मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया, बहरिया, फॉर्मेशन हेडक्वार्टर और पुलिस की यादगार शहदा पर तकरीबात हो रही हैं। इसके साथ साथ मुल्क भर के स्कूलों और कॉलेजों में भी खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया है। सूबाई दारुल हुकूमतों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी यादगार शहदा पर तकरीबात हो रही हैं और दिन की मुनासबत से मुल्क भर में रैलियां भी मुनाकिद की जा रही हैं। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान की मुनासबत से पूरे मुल्क में दिन का आगाज नमाज फजर के बाद कुरान खानी से हुआ। पाकिस्तान की सलामती और शहदाए पाक सरजमीन के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। उलमा कराम का कहना था कि आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेना हमारे मुल्क के शहदा के मरहून मिन्नत है, जो हम पर उनका कर्ज है। पर मताए जान लुटाने वाले गयूर बेटों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान की मरकजी तकरीब जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई। पुरवकार तकरीब का अहवाल जानने के लिए देखिए आसिम रिजवान की ये रिपोर्ट। अपना हाल कौम के मुस्तकबिल पर कुर्बान करने वाले मोहसिनों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान की मरकजी तकरीब जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पुरवकार तकरीब के आगाज में कौमी तराना बजाया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। या अल्लाह, वतन अजीज को इस्तेहकाम नसीब फरमा और हर मैदान में कामयाबी और कामरानी से हमकनार फरमा, आमीन। शोहदाए पाकिस्तान को आर्मी चीफ ने खराज अकीदत पेश किया और सलामी दी। इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद पुलिस, डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स, कमिश्नर रावलपिंडी, कमिश्नर इस्लामाबाद और रीजनल पुलिस अफसर रावलपिंडी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। यादगार शोहदा पर हाजिरी देने वालों में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड नदीम रजा भी शामिल थे। दिगर मुमताज शख्सियात में मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मौलाना अबू अल खबीर आजाद और इशरत फातिमा ने भी यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। तकरीब में शोहदा के अहले खाना और स्कूल के तुलबा और तालिबात ने भी यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। तकरीब में आला अस्करी हुक्काम, शोहदा के लवाहिकीन और मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात समेत तुलबा और तालिबात ने शिरकत की। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया। 9 और 10 मई के अलमनाक वाक़यात में शरपसंदों ने इस कौमी विरसे और कौमी अहमियत की हामिल इमारत को शदीद नुकसान पहुंचाया था। डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान ताहिर हसन ने इस मौके पर रेडियो पाकिस्तान पेशावर को पहुंचने वाले नुकसान और बहाली के इक़दामात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को बताया गया कि तारीखी पस मंज़र की हामिल इस इमारत ने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस और कौमी बयानिए को पूरी दुनिया तक पहुँचाया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म को रेडियो पाकिस्तान को तकनीकी और इसके रिकॉर्ड को पहुँचने वाले नुकसान की तफसीलात से आगाह किया गया। रेडियो पाकिस्तान के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 और 10 मई के रूनुमा होने वाले दिलखराश वाक़यात ने
پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے دلوں کو شدید ٹھیس پہنچائی ہے۔ 9 مئی اور 10 مئی کے دوران جو دلخراش واقعات رونما ہوئے، اس نے پاکستان میں بسنے والے 23 کروڑ عوام کو غم اور غصے کی ایک شدید لہر پورے پاکستان میں آنن فانن اس کی لہریں پھیل گئیں۔ جس سینٹر سے آزادی کی صدائیں 1947 میں بلند ہوئیں، اس کو جلا دینا، راکھ کا ڈھیر بنا دینا، چاگی کی جو یادگار تھی اس کو راکھ بنا دیا، اس سے بڑھ کر ملک دشمنی کو ہو نہیں سکتی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ تاریخی اور قومی ورثے کو جلا دینا کہاں کی حب الوطنی ہے۔ مستقبل میں ایسی کسی بھی ملک دشمن کارروائی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قیامت تک پاکستان کا کوئی بھی دشمن اس کی جانب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ جو دشمن بھی نہ سوچ سکا، اپنوں نے دشمن بن کر، دہشت گرد بن کر یہ واقعات جو انہوں نے سر انجام دیے ہیں، قانون اور آئین کے مطابق ان کو ضرور سزا ملے گی۔ تمام مشکلات کے باوجود بھی انشاءاللہ ہم قائد اعظم کے پاکستان اور اقبال کے پاکستان کا خواب ضرور شرمندہ تعبیر کریں گے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ریڈیو پاکستان پشاور کو پہنچنے والے نقصانات کے بعد بحالی کے کاموں پر وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ منصوبہ بندی کے تحت ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت پر حملہ کیا گیا اور ان تاریخی آرکائیوز کو جلا دیا گیا جو انمول تھے۔ جو آرکائیو کا لاس ہے، جو ہماری ہیریٹیج کا لاس ہے، جو ہمارا پورا ایک ہسٹورک آرکائیو جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، وہ جلا کر راکھ کر دی انہوں نے، اور اس کا کوئی اسی طرح ہم نے جب پی ٹی وی پر اٹیک ہوا تھا تو ہم نے آرکائیوز کو ڈیجیٹل کر دیا تھا۔ قیمتی اثاثے کو انہوں نے آگ لگائی ہے جس کی کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ ہم اس طرح کے لوگوں کو، ان مجرموں کو، ان مسلح جتھوں کو بالکل کسی قسم کی رعایت نہیں دیں گے۔ یوم تکریم شہداء کے حوالے سے نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں تقریب ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی امیر البحر امجد خان نیازی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ یوم تکریم شہداء کے حوالے سے نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ناظرین تقریب ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی امیر البحر امجد خان نیازی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ یوم تکریم شہداء کے حوالے سے نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں تقریب ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی امیر البحر امجد خان نیازی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ پاک فضائیہ بھی بھرپور طریقے سے یوم تکریم شہداء منا رہی ہے۔ ایئر فورس کی جانب سے ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ آج یوم تکریم شہداء منایا جا رہا ہے۔ مادر وطن کے لیے عظیم قربانیاں دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ پاک فضائیہ بھی بھرپور طریقے سے یوم تکریم شہداء منا رہی ہے۔ ایئر فورس کی جانب سے ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں تقریب کا اہتمام کیا گیا اور تقریب کے مہمان خصوصی پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ ملت اور ناموس دین کے تحفظ کے لیے راولپنڈی میں جے ایس ہیڈ کوارٹرز میں یوم تکریم شہداء منایا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز لیفٹیننٹ جنرل احسن گلریز نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔
नेवी की नुमाइंदगी रॉयल एडमिरल अब्दुल बासित ने की। उन्होंने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। पाक फिजाई की जानिब से एयर कोमोडोर वसीम ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज पूरी कौम अपने हीरोज़, गाजियों और शहदा को शानदार खिराज अक़ीदत पेश करने और उनके ख़ानदानों के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार करने के लिए यौम तकरीम शहदा इंतहाई अक़ीदत के साथ मना रही है। 9 मई के पुरतशद्दुद और अलमनाक वाक़यात को महज एक एहतजाज के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इन पुरतशद्दुद वाक़यात की मनसूबाबंदी करने वालों के अज़ाइम बहुत ख़तरनाक थे। पूरी कौम ने देखा कि कुछ लोगों ने इक़्तिदार की हवस में इन मज़मूम वाक़यात की तरग़ीब दी। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों समेत हमारी मुसल्लह अफवाज के जवानों और अफसरान ने अपनी बहादुरी और कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया और इस पर कौम उनकी मकरूस रहेगी। यौम तकरीम शहदा के मौके पर अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि आज हम मादरे वतन के लिए अजीम कुर्बानियाँ देने वाले अपने आबाओ अजदाद और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की बेमिसाल जुर्रत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए यौम तकरीम मना रहे हैं। जितनी बड़ी कुर्बानियाँ हमारे शोहदा देते हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान कायम है। इनकी कुर्बानियों की वजह से मैं और आप सुख और चैन के साथ रहते हैं। वो मुल्क जो शोहदा की कदर ना करे, वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े अल्लाह ताला की नेमत से भी महरूम रहता है। और मैं लवाहिकीन को भी ये कहता हूँ कि देखो, कभी उनकी औलादें मौजूद होती हैं तो मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ ने जन्नत के लिए तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर लिया कि बाप जैसी शफ़क़त तो दे नहीं सकते, मगर फिर भी कोशिश करो तो तुम्हारे अपने रास्ते मुकम्मल होंगे। तो मैं इस मौके पर और आज के दिन ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क को शोहदा के साथ अपनी बड़ी मोहब्बत है, रहेगी। और तारीफ़ करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने अपनी जानें दी। ता क़यामत वो ज़िंदा हैं, हमेशा के लिए वो ज़िंदा हैं। और उनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र अता करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि आज यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान पर शहदा गाजियों, उनके अहल खाना, वतन के मुहाफ़िज़ों से यकजहती का फ़क़ीद और मिसाल मुज़ाहिरा करके 9 मई को नो कहें। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि एक कौम की इज्तिमा सोच की तब्दीली का दिन है। तकरीम शहदा की रोशनी से 9 मई की स्याही मिटा दें। शहदा के मज़ारों, यादगारों पर फूल और अपनी मोहब्बतें निछावर करें। शहदा की तकरीम सबसे मुक़द्दस। यौम तकरीम के मौके पर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर की कब्र पर उनके वरसा और अवाम ने हाज़री दी। इस मौके पर पाक फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और फूलों की चादर चढ़ाई। आज यौम तकरीम शहदा नाज़रीन मनाया जा रहा है। मादरे वतन के लिए अजीम कुर्बानियाँ देने वाले आबाओ अजदाद, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की बेमिसाल जुर्रत और कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम शहदा मनाया जा रहा है। यौम तकरीम शहदा के मौके पर मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पर उनके वरसा और अवाम की बड़ी तादाद ने हाज़री दी, खिराज तहसीन पेश किया और मुल्क और कौम के लिए उनकी लाजवाल कुर्बानियों को सराहा। इस मौके पर पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और फूलों की चादर चढ़ाई। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, दीगर सिक्योरिटी इदारों के अफसरान और जवानों से अपनी बहादुरी और कुर्बानियों की बदौलत मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया और इस पर अक़वाम उनकी मकरूस रहेगी। पाक फ़िज़ाए का पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज शहीद को यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान पर खिराज अक़ीदत। पाकिस्तान के बहादुर सपूत, आला तरीन फौजी एजाज़, निशान हैदर पाने वाले कमसिन तरीन पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज शहीद को यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए पाक फ़िज़ाइया के शोबे ताल्लुकात आमा ने एक मुख्तसर दस्तावेज़ी फ़िल्म जारी कर दी। 17 फरवरी 1951 को कराची के मकाम पर जन्म लेने वाले राशिद मिनहास ने इब्तदाई तालीम के दौरान ही हवाबाजी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इम्तियाजी हैसियत से ए लेवल्स करने के बाद राशिद ने 18 साल की उम्र में पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की। मादरे वतन की हिफाजत के जज्बे से सरशार राशिद को T-33 हवाई जहाज पर कन्वर्जन के लिए मसरूर बेस भेज दिया गया। कबूल करे और इंशाअल्लाह अवाम की खिदमत की सियासत करते हैं।
आइंदा सियासी मुस्तकबिल में जो मेरे दोस्त, ये जो मेरा सासा हैं बैठे हैं, इनकी मुशावरत से जो भी ये फैसला करेंगे, जैसे पहले इन्होंने 13 में 11 में जब शमूलियत की तो इन्होंने कहा कि ठीक है जी PTI ज्वाइनिंग करेंगे। आने वाले टाइम में ये मेरे दोस्त जो भी मुझे गाइड करेंगे, मशवरा देंगे, क्योंकि ये पार्टी का असासा वर्कर ही होते हैं, ये दोस्त ही होते हैं। अगर किसी ने पैसे से जीतना होता तो मैं यह एक बात ज़रूर कहूँगा, तो मियाँ फैसल कभी ना हारता। तो ये दोस्तों की जो मोहब्बत 10 साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खिदमत की है, और 60 साल पहले मेरे बुजुर्ग अयूब दौर में काउंसलर रहे हैं, हाजी मुख्तार अंसारी काउंसलर नाज़म रहे हैं। हमारा यही मिशन रहा है कि हमने इंशाअल्लाह अपनी कौम की खिदमत करनी है, अपनी आवाम की खिदमत करनी है। हम हर खुशी गमी में और दुख सुख में अपनी अब दोस्तों के साथ होते हैं, इसीलिए लोग हमें प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, हम भी उनका एहतराम करते हैं। और मैं इसके साथ ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह, मैं पहले भी कहता था, मेरे दरवाजे इंशाअल्लाह आप दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए खुले और खुले रहेंगे। दोस्तों की मुशावरत से जो भी होगा इंशाअल्लाह हम करेंगे। और इसके साथ हम पाक फौज के साथ हैं, पाक फौज हमारा फ़ख्र है, पाक फौज के साथ है, पाक फौज हमारा फ़ख्र है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं पार्टी टिकट भी वापस करता हूं, और 9 मई के वाक़े के बाद जो हमने ये दोस्तों से मुशावरत की है, मैं PTI से अलहदगी का ऐलान करता हूं। के साथ और उन शोहदा के ख़ानदान के साथ मिलकर उनको जो है खैर तहसीन पेश करते हैं। आज आपको पता है कि हमारे सूबाई सदर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे फेडरल मिनिस्टर ओवरसीज़ साजिद तूरी साहब मौजूद है, पार्टी के हमारे बाकी अहदेदार भी, हमारे मालाकांड के और ख़ासकर स्वात के हमारे पार्टी की तंजीम सारी यहाँ पर मौजूद है। आज डॉक्टर हैदर साहब जो हैं, जिनका ताल्लुक़ स्वात से है, माजी में MPA भी रहे 2 दफ़ा, और इस दफ़ा भी इलेक्शन में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्त इन्होंने जीती। वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम तंजीमों की तरफ से डॉक्टर हैदर साहब को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर मैं खुश आमदेद कहता हूँ। मैं उनको अपनी पीपल्स पार्टी के ख़ानदान में जो है वो उसको खुश आमदेद कहता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला इनको हम ये यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा वर्करों और लीडरों की जो है वो हमेशा इज़्ज़त की है। टॉप प्रायोरिटी हमारी जो है वो इज़्ज़त होती है। और आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जिस तरह अपने वर्करों के साथ, अपने जो लीडर्स के साथ मोहब्बत और प्यार उनको देती है, आज तक आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अगर मुश्किल वक्त भी आया हो तो उनके पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उनके पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो उनके साथ मुश्किल और अच्छे वक्तों में रहे हैं। ख़ानदानों पे भी और कौमों पे भी मुश्किल वक्त आते हैं, हमने माजी में भी कई दफ़ा ये बातें की हैं। जब ख़ानदान और कौमों पे जब मुश्किल वक्त आता है, हमारे पीपल्स पार्टी की हमारी साल है कि हमें अक्सर लोग कहते थे कि आप क्यों नहीं जा रहे या क्या चीज़ें, तो ये मुश्किल वक्त आते रहते हैं। लोग जब ख़ानदान पे मुश्किल वक्त है तो ख़ानदान को छोड़ता नहीं है। लिहाजा मैं डॉक्टर हैदर साहब को खुश आमदेद भी कहता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से। बहुत सी चीज़ें दिन ब दिन जो हैं वो तब्दील होती जा रही हैं, और बहुत आप देख रहे हैं कि खिड़की तोड़ रश बना हुआ है जो है वो प्रेस क्लबों नंबर नहीं लग रहे हैं। सिफारिश पे प्रेस क्लब पे जो है नंबर लगाए जा रहे होते हैं कि जी अब तो ये आ गया कि आप नंबर छोड़ें, आप बस SMS कर दें या जो है ट्विटर पे ट्वीट भी कर दें तो कबूल हो जाता है। तो इसकी समय हमने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से PTI को बनाया जा रहा है, और मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब की बहुत कम तकरीरें कौमी असम्बली में और पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास में, और बहुत कम इंटरव्यूज़ जो है उन्होंने दिए हैं। उनके इंटरव्यूज़ अगर आज आप भी देखें, अगर आप देखें, उनका खुलासा यही था और हमेशा यही था
اور جب سوال کیا جاتا تھا کہ یار پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات یا بات چیت، تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، جب پی ٹی آئی سیاسی جماعت بنے گی تو ان کے ساتھ شاید مذاکرات ہوں۔ عمران خان پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، عمران خان ایک کھلاڑی ہیں، وہ سیاستدان نہیں ہے، اس کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اپنے وزن سے خود ہی جو ہے وہ گرے گی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اگر وہ پولیٹیکل لیڈر عمران خان ہوتے تو آج یہ نہیں کہتے، آج وہ ورکروں کو اس طرح بے سر و سامانی کی حالت میں نہ چھوڑتے، آج اپنے ورکروں کے لیے وہ آواز بلند کرتے، آج وہ کہتے کہ جو ہے خان راشد آج جو ہے وہ ورکروں کو کی بات کرتے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پہ جب قاتلانہ حملہ کراچی میں ہوا، کارساز پہ شام کو رات کو ہوا، اگلے دن صبح وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں اور لیڈروں کے گھروں میں تھی، ان کی عیادت کر رہی تھی، اسپتال میں تھی، فاتح خانیاں کر رہی تھی۔ یہ ایک پولیٹیکل لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہے کہ جی میں اور میری بیگم ٹھیک رہیں، باقی جو ہے اپنا بندوبست خود کریں، پھر اگلے موڑ پہ ملاقات ہوگی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور جواب بھی یہی تھا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور یہاں پر جو ہے کوئی قدم رکھے گا تو ہمارے جو ہے وہ ڈائلاگ تھے کہ لاشوں سے گزریں گے، تو اب تو زمان پار جو ہے ادھر ہو کا عالم ہے۔ لوگ جو تنقید کرتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید سندھ تک محدود ہو چکی ہے، آج تو پی ٹی آئی غالباً زمان پار تک محدود ہو چکی ہے، باقی تو ہمیں کہیں پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ ترجمان کی طرح جو بار بار آ کے ہمیں تانے دیتے تھے، آج تو وہ ترجمان ہماری پریس کانفرنسوں کا، ہمارے بیانات کے جوابات دینے سے قاصر ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ہوتا ہے نا وہ موبائل پہ ایروپلین موڈ، کوئی ایروپلین موڈ پہ چلے گئے، کوئی سلیپنگ موڈ پہ چلے گئے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہمیں تنگ مت کرو، ہم فی الحال جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ریسٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم ہمیشہ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ڈیپوٹیشن پہ گئے ہوئے ہیں، ڈیپوٹیشن کا 3 سال کا پیریڈ ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہے، اگلی پوسٹنگ کے انتظار میں اب فی الحال وہ او ایس ڈی بنے ہوئے ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا اور دیکھیے ان کی نئی پوسٹ جو ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے۔ لیکن ہمیشہ عمران خان صاحب نے جو ہے قوم کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ جھوٹ بولا۔ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں پاکستان میں اور اپنے خطاب کرتے ہیں قوم سے، جب وہ آ جاتے ہیں، کیونکہ پریس کانفرنس تو وہ کرتے نہیں ہیں، آپ لوگوں سے بھی وہ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں بس ایک خود ساختہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے اور امریکہ میرے سازش میں ملوث ہے، امریکہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ میرے خلاف کر رہا ہے۔ اور جب وہ ڈپلومیٹ سے بات کرتے ہیں اور گوروں سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فوج میرے خلاف ہے، فوج نے مجھے نکالا ہے۔ ادھر ان کو کہتے ہیں کہ جی قوم کہتے ہیں امریکہ اور دنیا میرے خلاف ہے، عالمی دنیا، اور ادھر جب ان کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں فوج میرے خلاف ہے۔ تو یہ جھوٹ کا پلندہ جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ لہٰذا ایک بہت اہم خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں میں، اور یہ آپ نوٹ کر لیں، باوثوق ذرائع سے ہمیں خبر ملی اور کنفرم تقریباً انشاءاللہ خبر ہے کہ وہ بہت جلد امریکہ میں پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو ہے وہ جس طریقے سے کانگریس مین کے ساتھ اور ان کے ساتھ انہیں بات چیت شروع ہے، آپ لوگ کسی دن جو ہے وہ ہم اٹھیں گے صبح تو آپ کی نیوز فلیش ہو رہی ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سیاسی پناہ کے لیے جو ہے وہ انہوں نے درخواست دے دی ہے یو ایس میں۔ لیکن مجھے یو ایس کانگریس مین سے بھی یہ سوال کرنا ہے کہ کبھی آپ لوگوں نے بھی عمران خان سے سوال کیا کہ آپ کا یہاں پر ایک کیس چل رہا ہے، اس کو بھی آپ آ کے اس کا ٹرائل کا بھی سامنا کریں۔ امریکہ میں بھی عمران خان صاحب کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے، ادھر بھی جو ہے کانگریس مین کو چاہیے کہ ان سے سوال کریں کہ آپ کے خلاف جو امریکہ میں کیس ہے اس کا کیا بنے گا، آپ کے خلاف جو ہے برطانیہ میں کیس ہے اس کا کیا بنے گا۔ لہٰذا وہ اس کوشش میں کہ کسی طریقے سے برطانیہ تو ان کا جانا فی الحال رکا ہوا ہے کیونکہ ان کو اوپر پابندی ہے، کیونکہ ان کے جو فعال ہے اس میں برطانیہ فی الحال ٹھیک نہیں آ رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ امریکہ میں ہی جو ہے کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ بات اس پہ جو ہے اوکے۔ دوسری چیز جو ہے ہماری یہ خواہش رہی ہے اور ہمیشہ ہم نے یہ کی ہے کہ ڈائلاگز ہوں وہ پارلیمنٹ میں ہو، پارلیمنٹ کا فورم استعمال کیا جائے، لیکن عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ کے فورم کو ہمیشہ جو ہے وہ پیچھے رکھا اور کانگریس مین کو آگے رکھا۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگز ہی مسئلے کا حل ہے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وے فارورڈ جو اس پولیٹیکل کرائسس کا ہے وہ الیکشنز ہیں، اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، عوام جس کو مینڈیٹ دے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان پر حکمرانی کرے۔ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ताकि जिस जमात को भी अक्सरियत मिलती है उसको चाहिए कि जो है वो यहाँ पर जो है वो हुक्मरानी करें। हम हमेशा यही चाहते हैं कि तमाम इदारे अपने जुरिस्डिक्शन में रहकर काम करें, चाहे वो सियासतदान है, चाहे जुडिशरी है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है। हम तमाम अगर अपने जुरिस्डिक्शन में रहकर काम करें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आगे तरक्की कर सकता है। लेकिन बड़े अफसोसनाक बात है कि हम हमेशा ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की तरह वो जिधर भी जाते थे ना कि इस मुल्क के मुतल्लिक इनसे सबसे ज़्यादा मुझे पता, इनको नहीं पता। वो अमेरिका जाते थे, लंदन जाते थे तो गए नहीं है, जिधर भी जाते वो कहते हैं मुझे आपके मुल्कों के मुतल्लिक आप लोगों से ज़्यादा पता है। इसलिए कल एक रिमार्क्स भी जुडिशरी की तरफ से आए, हमेशा अदालतों के जो है वो जजों के फैसले बोलते हैं, जज नहीं बोलते। अब लग रहा है कि जज जो है वो जर्नलिस्ट बन चुके हैं। हम हमेशा उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके फैसले, हमें बहुत से इख्तलाफात जुडिशरी के फैसलों से होंगे लेकिन कभी हमने इस किस्म के काम नहीं किए। हमें बहुत से इख्तलाफात माजी में रियासत से होंगे लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि हम रियासत पे हमलावर होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कभी रियासत को निशाना नहीं बनाया। उनके जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, उनके जो घर हैं, उनके दफातर, उनको कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा कि आप जाकर हमारे खिलाफ ये फैसले हैं, हमारे बानी चेयरमैन का अदालती कत्ल हुआ है, आप जाकर जो है कोर कमांडर के घर पे हमला करें, आप जाकर उस वक्त के सदर के घर पे हमला करें, उस वक्त के जो है आर्मी चीफ के घर पे हमला करें। हमने कभी अपने पार्टी के वर्करों को, लीडरों को ये तरगीब नहीं दी। लेकिन यहाँ पर तो जब करप्शन के केस में बुलाया जाता है, जब आपको कहा जाता है कि आपने इस मुल्क के टैक्स पेयर का गबन किया है, आपके और आपके घर वालों ने इसका जो है टैक्स पेयर के पैसों खाए हैं, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं, मैंने अगर पैसे खाए तो मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, मेरी मर्जी है कि मैं वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में दूं या मैं पाकिस्तान के जो है ख़जाने में डालूं। भाई आपके ज़ात के पैसे नहीं है, आपके ज़ाती पैसे हों तो फिर आप कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे थे जो कि उधर जाने थे, लेकिन आपने उसमें भी अपने कमीशन खाकर यूनिवर्सिटी बनाई, अपनी और अपने घर वालों को उसका बोर्ड का मेंबर जो भी बनाया, फिर ज़मीन ली, फिर डायमंड्स लिए। किधर गई वो फ़र्क होगी जो आपकी फ्लड में थी? अगर इतनी साफ शफाफ है तो आकर पीपल्स पार्टी के लीडरों की तरह मुकाबला करें। हम लोगों ने भी जेलें काटी, हमारी लीडरशिप ने भी जेलें काटी हैं। मैंने आज निकाला है तकरीबन आसिफ अली जरदारी साहब ने 4915 दिन जेल काटी, फरियाल तालपुर साहबा ने जो है 187 दिन जेल काटी, खुर्शीद शाह साहब ने जो है 765 दिन जेल काटी। इस तरह शर्जील मेमन साहब हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, किस किस पॉलिटिकल लीडर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं आपको नाम लेके दूँ। इस तरह बाकी सियासी जमात से PMLN है, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज है, बाकी भी देखें, उन्हें भी। ये तो हमें आज पता चला, हम तो हमेशा कहते थे कि ये एक क्राउड है, वो नाम मैं नहीं लेना चाहता कि ये एक दिन भी नहीं है, तो एक दिन भी थाने में गुजारते हैं, तीसरे दिन कहते हैं यार हमें जो है जो भी 10 अंगूठे लगा लो, हम तो सियासत से जो है तो बताया हो गए। सियासत तो आप तो कहते थे आप कुर्बानी देने वाले लोग हैं, आप लोगों ने आज़ादी लेनी है, आप लोगों ने इनकलाब लाना है, आप लोगों ने नया पाकिस्तान बनाना है। पाकिस्तान बनाने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान में जो कुर्बानियाँ दी हैं तो वो सबके सामने किस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन इस तरह की तो नहीं है कि आप एक थाने में जाएं और अगले दिन माफ़ीनामे लिखें, कुर्बानियाँ दें अगर आपने खड़े होने। लेकिन दूसरी तरफ उनका लीडर भी ऐसी है कि वो उनको डिसऑन करता है कि मैं इसको जानते भी नहीं हूँ। आज जो वर्कर उनके इन्हीं की वजह से, इन्हीं की बेरावी की वजह से जो आज जेलों में और थानों में, उनको आज पूछने वाला कोई नहीं है। आज पूछने वाला कौन होगा? क्योंकि इमरान खान के साथ ही कोई नहीं बचा तो कौन उनको पूछेगा? यही चीज़ें थी कि हम हमेशा हमने कहा, क्योंकि हमारा अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को और हमारा यही वो है कि हमारा जो लड़ाई है वो हमारी जो है वो किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई जो है वो गुर्बत के साथ, जहालत के साथ, शरपसंदी के साथ है। और हमने लोगों को रोज़गार देना है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि इस पॉलिटिकल उसमें जो है हमारे जो है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री मेरे पास है उसमें हमने एक डायनामिक सर्वे शुरू की थी। हमने साथ साथ पॉलिटिकल के साथ हमने अपनी मिनिस्टरों को भी कहा कि अपने मिनिस्ट्रियों में आवाम के फलाह बहबूद के लिए आप अपना काम भी जारी रखें। इसी तरीके से जो है इस वक्त जो डायनामिक सर्वे शुरू हुई थी उसमें तकरीबन 1.8 मिलियन 18 लाख के लगभग लोगों की डायनामिक सर्वे इस वक्त हो चुकी है और भी जारी रहेगी। हमारी जो नई किस्त है 9,000 रुपये, हम 25% जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसको बढ़ाया था, 9,000 की किस्त जो है हम अपने बेनिफिशरीज़ को, जो हमारे तकरीबन 8.9 मिलियन 99 लाख बेनिफिशरीज़ हैं, जून के दूसरे हफ्ते में हमारी एक नई किस्त भी
आ रही है बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम की, वो भी हम जो है वो देने जा रहे हैं। आखिर में हमारा यही मुतालबा है कि जिन जिन लोगों ने, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर थे, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर थे, चाहे जो भी थे, जिन जिन लोगों ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है और ख़ासकर फ़ौजी तनसीबात को, जिसको भी, उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी मुतालबा करती है कि जिन जिन लोगों के नुकसानात हुए, चाहे वो प्राइवेट हैं या ऑफिशियल है, उस नुकसानात को जो है उसकी रिकवरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से होनी चाहिए। क्योंकि हुकूमत हमेशा ये ठेका हुकूमत ने नहीं लिया कि आप करोड़ों उसका नुकसान करे लोगों का और फिर हुकूमत जाके पेमेंट करे। नहीं, जिस जिस सूबे में हुआ है, जहाँ जहाँ पर भी हुआ है, उनकी लीडरशिप से वसूली होनी चाहिए। और बड़े मतलब है कि अब मैं मजाक कहूँ या संजीदा कहूँ कि अफसोस की बात यह है कि ये कहते थे कि हमने करप्शन के खिलाफ जिहाद करें, ये लोग करप्ट और जो है वो है। अभी हमें पता चला कि वो हमारे जो गेट था हमारे रेडियो पाकिस्तान का, वो भी PTI के लोगों ने 9,000 रुपये भेज दिया था। ये करप्शन ख़त्म वाले हैं जो गेट भी नहीं बख्शते हैं, ये इनकी करप्शन की लेवल है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पीस, प्रॉस्पेरिटी और आगे प्रोसेस को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो है उस पर बात करती है और इंशाल्लाह हम बात इस पर चलते रहेंगे। मैं अभी डॉक्टर साहब से कहूँगा कि वो अपने ख्यालात का अगर इज़हार कर दें। और साथ साथ इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जून के महीने में सुवात का दौरा भी कर रहे हैं और डॉक्टर साहब के मेहमान होंगे उधर, वो अजीमुल शान जलसे से भी खिताब करने जा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना है कि PTI के रहनुमा डॉक्टर हैदर अली शाह की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर उनको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आज का जो दिन है उसके हवाले से मैं तकरीम शुहदा के तमाम शुहदा को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। और उसके साथ साथ मैं उनके लवाहिकीन के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए। मैं अपने तमाम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है यहाँ पे मौजूद, हमारे वज़रा साहिबान, हमारे तंजीमी जो सरबराहान साहिबान हैं, सूबाई, मरकज़ी और सूबे मलाकन डिवीज़न की जितनी भी लीडरशिप है, ज़िले स्वात से जितने भी लोग आए हुए हैं पीपल्स पार्टी के यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे हल्के की जो लीडरशिप है और पीपल्स पार्टी के तमाम वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ आप मीडिया का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने इस बिज़ी स्केजूल में जो मुल्क में चल रहा है अपना वक्त निकाल के मेरे ये जो ख्यालात हैं इनको कौम तक पहुँचाने की सही कर रहे हैं। मैं उन लोगों का भी इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे हल्के में इस फैसले की तायीद की है। मेरे साथियों 100% मुझ पे इत्तेफाक किया है और मैं सोशल मीडिया पे जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं और इसकी तायीद कर रहे हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ। और मैं पीपल्स पार्टी के उन तमाम वर्कर्स और लीडरशिप का भी मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे वेलकम किया है और मुझे इज़्ज़त दी है। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, सदर जरदारी साहब का और तमाम जो पार्टी लीडरशिप है, खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब, कायरा साहब, जितने भी हैं उन सब का मशकूर हूँ। और इससे सबसे ज़्यादा इस काम में जिन्होंने कोशिश की थी तो मैं हुमायूं खान और वज़ीरज़ादा साहब का और बादशाह साहब का, फैसल खान का इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने ये जो शमूलियत का मेरा प्रोसेस है इसको बहुत पहले से तकरीबन 1.5-2 साल से चल रहा था, लेकिन उस वक्त चूँकि मेरे पास एक पार्टी की अमानत थी, मैं MNA था, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन 4 माह पहले, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं इस बात की वजाहत समझता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ कि मैं जो आजकल लोग शामिल हो रहे हैं और बाहर ये अफवाहें हैं या एक बात चल रही है कि अंडर प्रेशर, तो मैं अंडर प्रेशर बिल्कुल ये काम नहीं कर रहा। मेरा केस बाकियों से मुख्तलिफ है। आप मीडिया वाले मौजूद हैं, इस बात की गवाही देंगे कि तकरीबन 3-4 माह पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ
फैसल खान भी थे, उसमें बाचा जी भी थे और वज़ीर ज़ादा साहब भी थे। एक तस्वीर वायरल हो गई थी। उस मीटिंग में मेरा उनके साथ एक उसूली जो मेरा ज़ाती था कि मेरी ख्वाहिश है और मेरी चॉइस भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन मैं अपने साथियों से मशवरा करूंगा, क्योंकि हमारी रिवायत है कि हम जितने भी फैसले करते हैं वो अपनी ज़मीर की रोशनी में और फिर अपने साथियों के साथ मिल के करते हैं। तो तकरीबन उस मुलाकात के बाद 3 माह मैं वो प्रोसेस करता रहा, अपने लोगों से मिलता रहा, उनको एतमाद में लेता रहा और फिर रमज़ान के फ़ौरन बाद, ईद के बाद एक ग्रैंड जरगे में, जिसका 1 महीना हो चुका है, 29 अप्रैल को, उसमें हमने पार्टी से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे इलाके के लोगों ने लाताल्लुकी का ऐलान किया और मुझे ये इख्तियार दिया कि जो पार्टी भी आप ज्वाइन करेंगे हम आपके साथ होंगे। ये 29 अप्रैल की बात है और वो सारा सोशल मीडिया पे मौजूद है उसका रिकॉर्ड। बहरहाल जब मुझ पे जिम्मेदारी डाली गई तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं दोबारा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से मिलूं और उनसे एक राउंड दोबारा कर लूँ। उन्होंने उससे ज़्यादा इज्जत दी और मैं और भी मुतमईन हुआ। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि पीपल्स पार्टी के अलावा मेरे साथ दूसरी पार्टियों ने भी राब्ते किए हैं, उनकी लीडरशिप से मेरी मुलाकात रही है और उन्होंने मेरे घर, मेरे गरीब खाने में अपनी लीडरशिप और जो लोकल लीडरशिप है मरकज़ी सूबाई के साथ, उनके वफूद भी भेजे। तो मैं उनका भी इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना एतमाद किया, मुझे मुनासिब समझा कि मैं उनकी पार्टियों को ज्वाइन करूँ। लेकिन मैं एक बहुत ही गौर फिक्र के बाद और अपने साथियों से मशवरे के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं आज पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता तौर पे शमूलियत का ऐलान कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जिस बुनियाद पे मैं पॉलिटिक्स में आया था, मैं प्रोफेशनली मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं न्यूरो सर्जरी में स्पेशलाइज कर रहा था, लेकिन मुझे एक एहसास हुआ कि मैंने अपने मुल्क के लिए अपना जो थोड़ा सा हिस्सा किरदार है वो अदा करूँगा और कंट्रीब्यूट करूँगा और इस पाकिस्तान को एक खुशहाल, मुस्तहकम और बावकार मुल्क के तौर पे कंट्रीब्यूट करूँगा। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक वो मुझे मौका नहीं दिया गया। हालांकि मेरे इलाके के लोगों ने जिस तरह फैसल खान ने कहा, कई बार इस काबिल बनाया कि मैं कुछ कर सकूं, लेकिन जहां मैं था वहां पे शायद इस बात की वो ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे थे। जिस बयानिए पे लोग आज भी कह रहे हैं कि नहीं वो ठीक है, मैं भी उस मंशूर और उस नजरी के पीछे चला गया कि यहाँ पे एक नया पाकिस्तान जिसमें इंसाफ होगा, जिसमें फैसले मेरिट पे होंगे, जिसमें एहतसाब होगा, जिसमें रूल ऑफ लॉ होगा और जिसमें रियल डेमोक्रेसी होगी, फैसले अवाम करेंगे। जो स्टेज पे रोज़ाना ये 5 दफ़ा दिन में लेक्चर देते आ रहे हैं, लेकिन मैंने पाया कि अंदर सब कुछ उसके बरक्स हो रहा था। एक दफ़ा मैंने खान साहब से पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में और नाज़रीन, यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के मौके पर आर्मी चीफ की स्कूल के बच्चों से गैर रस्मी मुलाकात। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने स्कूल के बच्चों से गैर रस्मी मुलाकात की। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान पर आर्मी चीफ ने स्कूल के बच्चों, जिनमें शहदा के बच्चे भी शामिल थे, उनसे मुलाकात की। स्कूल और बच्चों के शहदा के सरों पर दस्ते शफकत रखते हुए आर्मी चीफ ने अपने जज्बात का इजहार किया और कहा कि पाक फौज शहदा के तमाम बच्चों की वारिस है। आर्मी चीफ ने बच्चों से कहा कि शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आपसे हमारा रिश्ता मिसाली और हमेशा कायम रहने वाला है। पाक फौज हमेशा आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के मौके पर आर्मी चीफ का स्कूल के बच्चों से गैर रस्मी मुलाकात। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान पर आर्मी चीफ ने स्कूल के बच्चों, जिनमें शहदा के बच्चे भी शामिल थे, उनसे मुलाकात की। स्कूल और शहदा के बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत रखते हुए आर्मी चीफ ने अपने जज्बात का इजहार किया और कहा कि पाक फौज शहदा के तमाम बच्चों की वारिस है। आर्मी चीफ ने बच्चों से कहा कि शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत
آپ سے ہمارا رشتہ مثالی اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. پاک فوج ہمیشہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی. ناظرین، یوم تکریم شہدائے پاکستان آج ملک بھر میں انتہائی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور آرمی چیف نے آج کے دن اسکول کے بچوں سے غیر رسمی ملاقات کی ہے. یوم تکریم شہدائے پاکستان پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اسکول کے بچوں، جن میں شہداء کے بچے بھی شامل تھے، ان سے ملاقات کی اور ان کے سروں پر دست شفقت رکھتے ہوئے آرمی چیف نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور جو تقریبات کا آج انعقاد کیا گیا ان میں بھی بچوں نے شرکت کی. یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور پاک فوج شہداء کے تمام بچوں کی وارث ہے. ناظرین، یوم تکریم شہدائے پاکستان کی مناسبت سے آج جو مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، اس تقریب میں بھی بچے شامل تھے. انہوں نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے تھے اور اب آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بچوں سے ملاقات کی ہے اور ان کے سروں پر دست شفقت رکھتے ہوئے آرمی چیف نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور کہا کہ پاک فوج شہداء کے تمام بچوں کی وارث ہے. شہداء کی لازوال قربانی کی بدولت آپ سے ہمارا رشتہ مثالی اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. اور ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.